Hi friends, Namaste, Sasriyakal. I'm Deeksha and you are studying Audit with Deeksha. It's my new YouTube channel and I'm new at YouTube. It's my first video so I'm little bit nervous. Hope you support me and like, share, subscribe my YouTube channel. What I'm going to do is to make a short videos on the topic of audit like essays, small topics so that you can revise it audit in just a few minutes anywhere and at any time. कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना. इसी नोट पे लेट्स बिगिन. टुडेज टॉपिक इज़ एसे 200. अब लोग बोलते हैं कि एसे 200 तो छोटा मोटा सा है, इससे कोई क्वेश्चंस नहीं आते या इसको पढ़ के हमारा क्या ही होगा. लेकिन जैसे क्रिकेट में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं वैसे ही ऑडिट में भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं. अगर आपको एसे 200 के बारे में ही नहीं पता होगा, ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं पता होंगे ऑडिटर के, तो आप ऐसे आगे कैसे काम करोगे. तो आज का टॉपिक हमने लिया है एसे 200. इंटर में आते हैं क्वेश्चंस और थोड़े बहुत फाइनल्स में भी कभी कभार आ जाते हैं, तो हमें क्यों कुछ छोड़ के जाना एग्ज़ाम्स में. हम एक एक चीज़ कवर करेंगे और इतने ईजिली, इतने अच्छे से कि आपको सब कुछ समझ आएगा. एसे 200. What is the name of essay 200? It's the overall objective of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with the standards on auditing. Its overall objective of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with the standards on auditing. एट दी एंड हमें एग्ज़ाम्स में लिखना है तो हमें याद करना पड़ेगा इसे. तो मैंने इसके लिए एक मीमो कोड बनाया है. O2 ICASA. O2 ICASA. O2 इज फॉर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. ई का EIA इंडिपेंडेंट ऑडिटर का कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद सा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. O2 ICASA कितने ईजिली है. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर and the conduct of an audit in accordance with standards on auditing. आप भी मेरे साथ बोलो. Overall objective of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standards on auditing. Who has to do it, what has to do it, and how has to do it. It's the overall objective. Objective is who has to do it, how has to do it, and why has to do it. हमें ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होगा ऑडिट का, तो हम ऑडिट कैसे करेंगे. सो यहाँ पे हमने लिखा है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. हु हैज़ टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स हम ऑडिट करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट परफॉर्म करना पड़ता है. तो वो कौन परफॉर्म करता है. हम, आप, नॉर्मल पीपल नहीं. ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स ऑन एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ही अपना ऑडिट परफॉर्म करना पड़ता है. इफ़ आई डिडंट डू मीन्स इफ ऑडिटर डिडंट डू इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कैन एनी लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम. मीन्स अगर ऑडिटर नहीं फॉर्मेट, हम बोलते हैं कि हमें नई फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट करना, हमें नई इंगेजमेंट लेटर का परफॉर्म करना जैसे उसमें कहा गया है, तो हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सकता है. प्लीज़ कमेंट योर आंसर्स डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल गिव दिस आंसर इन माई नेक्स्ट वीडियो. हु हैज़ टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स, वाई हैज़ टू एंड हाउ हैज़ टू डू इट, ये सब कहाँ लिखा है. It's all written in Essay 200. Essay 200 is for the objectives of the auditor. Now, what is overall objective? Overall objective is to obtain the reasonable assurance, free from material misstatement, to express an opinion prepared by management in accordance with applicable financial reporting framework, to report the findings in accordance with the essays. To obtain the reasonable assurance free from material misstatement, to express an opinion prepared by management of applicable reporting framework, to report findings in accordance with essays. Now, I will take one block to explain you what about this. So, I have taken applicable financial reporting framework first. What does mean by financial reporting? Is the applicable accounting framework. If I have to say in another words, is that framework is to applied by us by doing the accounting. So it's a framework. Laws and regulations prepared by management, followed by management in preparation of financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय मैनेजमेंट ने जो फॉलो किया है फ्रेमवर्क, लॉज एंड रेगुलेशन, दैट इज नोन एज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एन इंडियन कंपनी उससे अपनी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा तो उससे दो चीज़ क्या देखना होगा, इस कॉमन दो चीज़ हम क्या देखते हैं, एक इंडियन कंपनी है तो उस पर इंडियस कौन से लग रहे हैं, प्लस स्केड्यूल, उसकी जो बैलेंस शीट है वो स्केड्यूल 3 से बनी है या नहीं। जैसे आई हैव ऑलरेडी सेड कि क्रिकेट में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं लाइक LPW, सेम एज इट इज इसमें भी आपके ऑडिट में भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं। SA 200 इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। लेट्स स्टार्ट विथ रिवर्स। व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? मिस स्टेटमेंट इज समथिंग टू डू रॉन्ग, error, fraud, whether it is intentionally or unintentionally. सपोज आप CA फाइनल्स में, जो CA फाइनल्स है वो आर्टिकलशिप कर रहे होंगे, एंड CA इंटर्स को भी अगर आप कहीं जाओ, किसी ऑडिट में जाओ, तो आप इन्वेंट्री वैल्यूएट करते हो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते टाइम क्या होता है कि आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन किया, आपने देखा कि आपकी बुक्स में जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर की है उसमें 120 करोड़ लिखे हैं, बट आपने जब इन्वेंट्री वैल्यूएट किया तो आपको लगा कि 100 करोड़ होने चाहिए। तो व्हाट इज दैट? मीन्स 180 करोड़ इज व्हाट इज, आपकी बुक्स में क्या दिखा रहा है 120 करोड़, बट व्हाट शुड बी, आपने जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन किया तो आपको लगा कि 100 करोड़ होने चाहिए। तो जो डिफरेंस है व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी इज मिस स्टेटमेंट। ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा हुआ, दैट इज मिस स्टेटमेंट। इट कैन बी सपोज यहाँ पे 80 करोड़ भी हो सकते थे, दैट इज ऑल्सो मिस स्टेटमेंट। मीन्स व्हाट इज, आपने बोला कि 80 करोड़ आपके बुक्स में दिख रहे हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कोई कम नहीं करेगा, बट सपोज कि आपके बुक्स में 80 करोड़ दिख रहे हैं, बट व्हाट शुड बी 100 करोड़ होने चाहिए। तो 20 करोड़ का जो डिफरेंस है, व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी का जो डिफरेंस है, वो मिस स्टेटमेंट कहलाता है। और व्हाट इज मटेरियलिटी? if we consider materiality is of 50 crores, suppose अगर हमने मटेरियल अपनी कंपनी को मटेरियलिटी 50 करोड़ सेलेक्ट किए हैं, बट यहाँ पे जो हमारी मिस स्टेटमेंट है वो सिर्फ 20 करोड़ की है, तो वी कंसिडर कि ये मटेरियल नहीं है। तो हम ये सोचेंगे कि 50 करोड़ की मटेरियलिटी है, अगर उसमें 20 करोड़ का मिस स्टेटमेंट है तो वो हमारे लिए मटेरियलिटी नहीं है। इन दैट सेम केस अगर हम सोचते हैं कि हमारी जो मटेरियलिटी है वो 10 करोड़ की है, तो इन दैट केस ये 20 करोड़ का जो मिस स्टेटमेंट है वो हमारे लिए मटेरियल बन जाएगा। तो मटेरियल डिफरेंस इज बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी। नेक्स्ट इज रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस इज द हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। हाई लेवल इज लाइक 99% बट नॉट एब्सोल्यूट। 100% हम नहीं देते हैं, हम सिर्फ 99% ही दे सकते हैं। वाई नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस? Because of the duty of inherent limitations. Inherent limitations because we got the document as a persuasive evidence, means most likely to be true. Persuasive means most likely. We get the conclusive evidence. Conclusive evidence means only that is true. Due to inherent limitations हम यही बोलते हैं कि 99% है, इस परसुएसिव एविडेंस मिला है हमें, हम 99% ही देंगे, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देंगे बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सिंपल फंडा ये है कि अगर हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस मिलता हमें तो हम उसको एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते, बट हमें मिला ही परसुएसिव है, रीजनेबल एश्योरेंस देंगे हम, क्योंकि हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम डॉक्यूमेंटेशन को सर्च करें, हम पुलिस नहीं है, हमें जो मिलता है हम सिर्फ उसी को देखते हैं। तो हमें जो प्रोवाइड किया जाएगा हम उसको उसके बेसिस पे उसको देख के हम 99% देते हैं। इसलिए पहले हम बोलते थे कि ट्रू एंड करेक्ट, बट अब हम क्या बोलते हैं, ट्रू एंड फेयर, क्योंकि वो 1% का रिस्क हमेशा हमारे पास रहता है। इसलिए हम अब रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं परसुएसिव एविडेंस को देख के। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में क्या था, रीजनेबल एश्योरेंस, नॉट ए आई विल गिव यू अ हाई लेवल एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। हमारे पास जो है रीजनेबल एश्योरेंस वो क्या फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है? क्या हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने जो ऑडिट किया है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है? तो हम ऑब्टेन करते हैं रीजनेबल एश्योरेंस फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमें जब पता चल जाता है कि
हमारे पास जो ऑडिट किया है हमने वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है। हमने उसको रीजनेबल एश्योरेंस भी दे दिया है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया था। उसके बाद हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। नाउ वी हैव टू गिव एन ओपिनियन। हमने एक्सप्रेस कर दी ओपिनियन to an audit report बना दी on the findings in accordance with essays. So overall objective is to obtain the reasonable assurance free from material misstatement to express an opinion prepared by management in accordance with applicable FRF to report the findings in accordance with essays. Thanks for watching me. I hope you like it. If you have any query or doubt, please comment in the comment section. Thank you.